এখনো ভোট নেননি নগেন্দ্রনাথ রায়, অনন্ত মহারাজ উপস্থিত রয়েছেন। এডিআরএম আলিপুরদুয়ার ডিভিশন রাজেশ গুপ্তা, ডিসিএম সিনিয়র ডিসিএম আলিপুরদুয়ার শ্রী অঙ্কিত গুপ্তাজি, पीछे चला जाइए এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দিনহাটার আপামর জনসাধারণ এবং যারা আজকে বিভিন্ন স্কুল থেকে কচিকাচারা পারফর্ম করেছেন প্রত্যেককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। প্রথমেই বলবো যে দেশকে ডেভেলপিং নেশন থেকে ডেভেলপ নেশনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে নিরন্তর প্রয়াস করছেন, আর সেই প্রয়াসে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যেভাবে একদিকে ইনফ্রা ডেভেলপমেন্ট, পাশাপাশি কানেক্টিভিটি ডেভেলপমেন্টের দিকেও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিতার মাধ্যমে প্রত্যেকটা জায়গায় উন্নয়ন হয়ে চলেছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব পালন হচ্ছে, আর এই অমৃত মহোৎসবের মাধ্যমেই বিভিন্ন জায়গায় আমরা যে অমৃত প্রকল্পগুলো বিভিন্ন জায়গায় যে শুভারম্ভ হচ্ছে, তার মধ্যে আজকে এই দিনহাটা স্টেশন অনেক পুরনো স্টেশন, এই স্টেশনে সেই উন্নয়নের জোয়ার, অমৃতকালের অমৃত প্রজেক্টের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়ন যাতে যেমন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রান্তিক জেলা কুচবিহার, সেই জেলার অতি প্রাচীন দিনহাটা স্টেশন, সেই স্টেশনেও কিন্তু অমৃত ভারতের যে অমৃত ভারত স্টেশনের যে স্কিম, সেই স্কিমের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশনে আগামী দিনে দিনহাটা স্টেশনকে রূপান্তরিত করতে চলেছি। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তিনি যেমন একদিকে বিভিন্ন শহর থেকে শুরু করে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি এবং পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকার যে ছোট ছোট স্টেশনগুলো রয়েছে, সেই স্টেশনকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন করবার জন্য যে প্রকল্প নিয়েছেন, অমৃত স্টেশন প্রকল্প, এবং সেই প্রকল্পের উন্নয়নের ধারা যে আমাদের কুচবিহারের প্রান্তিক জেলা কুচবিহার তার দিনহাটা স্টেশনে এসে পৌঁছেছে, সেই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 50,915 কোটি টাকা ভারতীয় রেলওয়েজের কাজ চলছে। সেখানে লাইনের ইলেকট্রিফিকেশন থেকে শুরু করে স্টেশনকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশনে রূপান্তরিত করার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু কাজ চলছে, এবং পশ্চিমবঙ্গেই শুধুমাত্র ভারতীয় রেলওয়ের প্রায় 50,915 কোটি টাকার কিন্তু কাজ চলছে। 2023-24 শুধুমাত্র এক বছরের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ 11,970 কোটি টাকা রেকর্ড বরাদ্দ পেয়েছে, যা এর আগে কোনো দিনও এই এত পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পায়নি। অমৃত ভারতের যে স্কিম, স্টেশনের যে স্কিম, সেই স্কিমের মাধ্যমে সারা দেশে 508টি স্টেশন কিন্তু সেই স্টেশনের ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে, স্টেশনের ইমপ্রুভমেন্টের কাজ চলছে, এবং তার মধ্যে আমরা পশ্চিমবঙ্গেই শুধুমাত্র প্রায় 98টি স্টেশনকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন করবার সিদ্ধান্ত কিন্তু নরেন্দ্র মোদীজির সরকার নিয়েছে।
আজকে বিভিন্ন সময় দিনাটার ব্যবসায়ী সমিতি থেকে শুরু করে যারা সজ্জন গুরুজন রয়েছে, যারা দিনাটার ডেভেলপমেন্টের জন্য ভাবে, যারা দিনাটার উন্নয়নের জন্য ভাবে, এবং সর্বোপরি স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে যারা প্রত্যহ দিনাটা স্টেশন থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করেন এবং দূরপাল্লার যে ট্রেনগুলো রয়েছে সেই ট্রেনের মাধ্যমে যে প্যাসেঞ্জাররা রয়েছে তারা কিন্তু একটা আধুনিক পরিষেবা স্টেশন থেকে পেতে চলেছে। এবং আজকে আপনাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি, খুব কম সময়ের মধ্যেই 120-30 কিলোমিটার বেগে ছুটে চলার যে ট্রেন, সেই ট্রেন কিন্তু এই দিনাটা স্টেশন থেকে চলবে। সেটা কিন্তু আপনাদের আজকে আমরা শুধুমাত্র যখন দেখি যে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ইনফ্রা ডেভেলপমেন্ট চলছে, কোথাও ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ চলছে, কোথাও এয়ারপোর্টের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে, কোথাও আবার ট্রেন পরিষেবা, রেল পরিষেবা সেটাকে একেবারে আধুনিকীকরণের কাজ চলছে, আমরা যখন দেখি নিশ্চিতভাবে যে সমস্ত ডেভেলপ কান্ট্রিগুলো রয়েছে, যারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলো রয়েছে, সেই দেশগুলোর সঙ্গে খুব কম সময়ের মধ্যেই আমরা কিন্তু টেক্কা দেব এবং টেক্কা দিয়ে চলব। আজকে বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা 5 নম্বর স্থান আমরা এখন রয়েছি এবং 2024-এ আপনারা জানেন যে মোদিজি আবার নতুন করে শপথ নেবার পরে নিশ্চিতভাবে আমরা বিশ্বের 3 নম্বর অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশ হিসেবে উঠে আসবো, সেই ব্যাপারে কিন্তু আমরা নিশ্চিত। আজকে আমরা যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং বিভিন্ন দেশের প্রগতির ক্ষেত্রে আমরা যখন চোখ রাখি, আজকে একটা সময় আপনারা জানেন যে এই স্টেশন, এই রেল লাইনের মাধ্যমেই বহু দূরপাল্লার ট্রেন ভারত, বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন স্থানে এই স্টেশনের মাধ্যমে, দিনাটা স্টেশনের মাধ্যমে যেত। কুচবিহারের মহারাজারা সেই সময়ে ট্রেন লাইন, এই লাইন দিয়ে বহু ঐতিহাসিক ট্রেন যাত্রা হয়েছে। একদিকে যেমন সেই সময় এপার বাংলা ওপার বাংলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ট্রেনের ব্যবহার হয়েছে এবং পাশাপাশি বহু ঐতিহাসিক মুহূর্ত, ঐতিহাসিক স্মৃতি কিন্তু এই ট্রেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত। আজকে আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি যে এই ট্রেন লাইন যাতে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছতে যে কম সময় লাগে আপনারা জানেন, সেই ব্যবস্থা আমরা করবার কথা ভাবছি। আপনারা জানেন যেহেতু দুটি দেশের মধ্যেকার বিষয়, সেই জন্য এখানে একটুখানি বিলম্ব হচ্ছে, কিন্তু আমরা এই বিষয় নিয়ে অত্যন্ত আমরা গুরুত্বের সঙ্গে এই বিষয়টিকে দেখছি। বিদেশ মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশের রেলওয়ে মিনিস্ট্রি এবং ফরেন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে এবং আগামীতে আমরা এর সুরাহা করবার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আমরা চাই যে দিনহাটার মানুষ, কুচবিহারের মানুষ কানেক্টিভিটির দিক থেকে যেমন এগিয়ে থাকবে, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত যে ট্রেন, সেই ট্রেন চললে অনেকটা সময় বাঁচবে, আবার পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে যে কানেক্টিভিটি সেটাকেও দ্রুততার সঙ্গে আরো ইমপ্রুভ করবার আমাদের চেষ্টা কিন্তু হচ্ছে। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই নিউ কুচবিহার স্টেশন থেকে আমি আপনাদের কথা দিয়েছিলাম যে নিউ কুচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস শিলিগুড়ি থেকে যে আমাদের গুয়াহাটি পর্যন্ত যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলে সেটা দাঁড়াবে এবং আমি কথা রেখেছি, ভারতীয় রেল কথা রেখেছে এবং কুচবিহারের মানুষকে কিন্তু বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতন সুবিধা ভারতীয় রেল পাইয়ে দিয়েছে।
আজকে পাশাপাশি আপনারা দেখেছেন যে কুচবিহার থেকে বিমান পরিষেবা, একটা সময় কুচবিহারে যে বিমানবন্দর সেটা একেবারে একটা ভুতুরে বিমানবন্দর হয়ে পড়েছিল, সেখানে ডেভেলপ করে সেখান থেকে উড়ান স্কিমের মাধ্যমে বিমান পরিষেবার ব্যবস্থা হয়েছে। একটি বিমান প্রত্যেক দিন কুচবিহার বিমানবন্দর থেকে চলছে এবং আজকে এই যেহেতু রেলওয়ে প্রোগ্রাম, কানেক্টিভিটির প্রোগ্রাম, পরিষেবার প্রোগ্রাম, সেই জন্য আজকে দাঁড়িয়ে আপনাদের বলছি খুব কম সময়ের মধ্যে কুচবিহার বিমানবন্দর থেকে আরো বেশ কয়েকটি বিমান প্রত্যেক দিন কিন্তু উড়ানো হবে। আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসবার সময় হয়ে গেছে। সর্বোপরি দিনাটার সাধারণ মানুষকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো, যারা সদা সর্বদা দিনাটার উন্নয়নের ক্ষেত্রে, প্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তাশীল। সেই সমস্ত মানুষকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের এই রেল পরিষেবার এই স্টেশনের আধুনিকরণের পাশাপাশি এই আমরা জানি যে স্টেশন সংলগ্ন একটা লোকালয় রয়েছে, বহু মানুষের বসবাস এই অঞ্চলে, এবং বারংবার এখান থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল একটা ফুট ফ্লাইওভার, যেমন এখানে একটা ফুট ওভার ব্রিজ রয়েছে যেটা সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করা যায়, এখানে পাশাপাশি আমরা একটা ফুট ফ্লাইওভার যেটা দিয়ে সাইকেল থেকে শুরু করে মোটর সাইকেল সবকিছু নিয়েই উপর দিয়ে পারাপার করা যাবে, এমন একটি ফ্লাইওভারের কথা কিন্তু আমরা ভাবছি এই এলাকার, এই পার্শ্ববর্তী জনবহুল এলাকার কথা ভেবে। আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসুন সবাই মিলে বলি ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী স্যারকে। এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন শ্রী নগেন্দ্র রায়, অনারেবল এমপি রাজ্যসভা, এখনো শপথ গ্রহণ করেন নাই। আমরা এডিএন হেডকোয়ার্টার সাহেবকে অনুরোধ করব উনাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য। একবার জোরদার হাততালি। একবার জোরদার হাততালি প্লিজ। ধন্যবাদ। এখন আমাদের সময় চলে আসছে কানেক্ট হওয়ার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর। এদিকে আসেন মাসি। এখন আমাদের মাঝখানে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লাইভ আসবেন। অমৃত ভারত প্রকল্পের সম্বন্ধে আপনাদের মাঝখানে সম্বোধন করবেন। আপনারা সবাই অধীর আগ্রহে ওনাকে শুনুন। এনএফএল আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের তরফে দিনহাটার সমস্ত জনগণ এবং আমাদের মাঝখানে যারা বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন সবাইকে আমরা আন্তরিকভাবে
ধন্যবাদ দিচ্ছি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনারা সবাই এই হোয়াট ইজ গুড ইন রেলওয়ে, হোয়াট ইজ গুড ইন নেশন, এই যে কনসেপ্ট অমৃত ভারত, যার তহত আমরা টোটাল 508টি রেল স্টেশনের ফাউন্ডেশন স্টোন নিতে চলেছি। আমরা এখনই শুরু করব। ধন্যবাদ। আমাকে দাও, আমাকে দাও। না তুলে সারো, না তুলে সারো, না তুলে সারো, মত ধরো। আমার হাত লেগেছে। রেসপেক্টেড মিডিয়া পারসনদের বলবো একটু কাইন্ডলি একটু সাইড হওয়ার জন্য, পিছনে দর্শকরা একটু যাতে প্রোগ্রামটা উপভোগ করতে পারেন। দিয়ে দিয়ে সামনে বসে থাকো। হ্যাঁ, তো খালি প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য লেখা। ধন্যবাদ। আজকে এই অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের ফাউন্ডেশন স্টোন ভিত্তি স্থাপন প্রোগ্রামে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিশীথ প্রামাণিক মহোদয়, স্বরাষ্ট্র, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর, ভারত সরকার উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাঝখানে। মাননীয় মালতী রাভা রায়, অনারেবল এমএলএ তুফানগঞ্জ কনস্টিটিউয়েন্সি, আমাদের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছেন শ্রী নগেন্দ্র রায়, উনি খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যসভা সাংসদ হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের এনএফএলএ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিআরএম সাহেব, উপস্থিত আছেন ডিসিএম আইসি স্যার, উপস্থিত আছেন এডিএন হেডকোয়ার্টার স্যার, এবং সর্বোপরি উপস্থিত আছেন দিনহাটার সমস্ত আমাদের অতিথিবৃন্দ, যারা আজকের এই প্রোগ্রামকে উপভোগ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা আজকে দিনহাটা স্টেশনের যে আমাদের ড্রিম প্রজেক্ট, যে অমৃত ভারত স্কিমের তহত আমরা দিনহাটা স্টেশনকেও আমরা মডার্ন স্টেশন, ফুল ইকুইপড স্টেশন, ফুল প্যাসেঞ্জার এমেনিটি স্টেশন হিসাবে পেয়েছি। টোটাল আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে 15টি স্টেশন সিলেক্ট হয়েছে, তার মধ্যে 5টি আসামের স্টেশন এবং 10টি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেশন সিলেক্ট হয়েছে। এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাঝখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এসে আমাদের মধ্যে লাইভ স্পিচে আসবেন। সমস্ত অতিথিবৃন্দ যারা আজকে এসে উপস্থিত হয়েছেন, এনএফএলএ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের তরফে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। नमस्कार, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अपने दूरदर्शी एवं अभिनव दृष्टिकोण से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील परम आदरणीय जी, आपके द्वारा विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उनका कायाकल्प किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का रेलवे को आर्थिक विकास पिछले 9 वर्षों में रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर 1000 करोड़ रुपए की गई। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनना हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। कैसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन पे काम करके आज 508 स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े, स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उभरे, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके। हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहां पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, इन सब की जरूरतों का सभी संकल्प 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक आभार करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद। के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जिन सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, आइए नजर डालते हैं इसकी झलक दिखाती एक लघु फिल्म पर। भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग ढक के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहाँ एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई, दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर
और इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट कर। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को, देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठुलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को आप प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा। और सोचिए, लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस। और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा,
बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से 508 भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा।
राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी, भारत के लोगों ने करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो पहली वजह। और दूसरी वजह है, पूर्ण बहुमत की सरकार ने उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए। चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है, उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। 1 साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया है।
पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त हो चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करे। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करो। लेकिन आगे इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देसी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी। वो यादगार बन जाती। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों, कामगारों और कारीगरों फायदा होगा। साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया। ये अमृत रेलवे स्टेशन उसके भी प्रतीक बनेंगे, हमें गर्व से भर देंगे। इन स्टेशंस में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की जयपुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। चलिए तो चल रही है, शायद आपके ध्यान में आया होगा, उसको भी मजबूती दी जा रही है। साथियों, किसी भी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशियल को पहचानें। भारतीय रेल में तो
ग्रोथ को रफ्तार देने का अपार पोटेंशियल है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों हमने रेलवे रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया। इस साल के रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। ये बजट 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेलवे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है। इन 9 वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज देश में पहले की अपेक्षा 13 गुना ज्यादा HLB कोच बन रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, गेज परिवर्तन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनों की कमीशनिंग भी पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हो रही है। साथियों, पिछले 9 वर्षों 2200 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसकी वजह से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है। दिल्ली NCR से वेस्टर्न पोर्ट तक, चाहे गुजरात के समुद्री तट हो या महाराष्ट्र का समुद्री तट हो, पहले से जो सामान ट्रेन से पहुंचाने में एवरेज औसतन 72 घंटे लगते थे, आज वही लगेज, वही सामान, वही गुड़ 24 घंटे में पहुंच जाता। ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40% की कमी आई है। ट्रैवल टाइम में कमी आने का मतलब है कि मालगाड़ियों की गति बढ़ी है और सामान भी अब ज्यादा तेजी से पहुंच रहा है। इसका बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है। हमारी फल सब्जियां अब ज्यादा तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रही है। जब देश में इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है, हमारे छोटे मोटे कारीगर, हमारे लघु उद्योग जो कुछ भी उत्पादन करते हैं, वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुंचेगा। साथियों, आप सभी ने देखा कि पहले रेलवे ओवरब्रिज का कम होने के कारण कितनी दिक्कतें आती थी। 2014 से पहले देश में 6000 से भी कम रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज थे। आज ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। देश में बड़ी लाइन पर मानव रहित क्रॉसिंग की संख्या भी 0 हो चुकी है।
रेलवे और रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं के निर्माण में आज बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथियों, हमारा जो भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं। यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाए। हमारी ट्रेनों के करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जाती है। ट्रेनों में बायो टॉयलेट की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे, ये भी ग्रीन विलेज के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। साथियों, रेल ने दशकों से हमें अपनों से मिलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है, काम किया है। एक प्रकार से देश को जोड़ने का भी काम किया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम और कर्तव्य काल भी है। लेकिन साथियों, कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने धरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी नहीं देंगे। न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़ंगी है। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया है। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया।
लेकिन साथियों, हमने देश के विकास को इस सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ाने का फैसला किया और इसलिए नकारात्मक राजनीति से ऊपर सकारात्मक राजनीति के मार्ग पर एक मिशन के रूप में हम चल रहे हैं। किस राज्य में किसकी सरकार है, कहां किसका वोट बैंक है, इस सबसे ऊपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये धरती पर चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे। साथियों, पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जॉब देने का भी बहुत बड़ा जरिया बनी है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नौकरी मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस समय केंद्र सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का अभियान भी चला रही है। रोजगार मेलों में लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए अवसर दे रहा है और युवा विकास को नए पंख लगा रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। कई पद्म सम्मान प्राप्त महानुभाव भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हर भारतीय के लिए अगस्त महीना बहुत विशेष महीना होता है। ये महीना क्रांति का महीना है, कृतज्ञता का महीना, कर्तव्य भावना का माह है। अगस्त में कितने ही ऐतिहासिक दिवस आते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को नई दिशा दी और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। कल 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है। हमें अभी से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की तरफ जाना है। हम कोशिश करें कि गणपति बप्पा की प्रतिमाएं इको फ्रेंडली मटेरियल्स की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगर, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देगा। साथियों, 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन, क्विट इंडिया।
यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। साथियों, उसके बाद 15 अगस्त की पूर्व संध्या, 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के 2 टुकड़े हो गए थे। एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। ये उन अनगणित लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मां भारती के लिए अपनी श्रद्धा को लेते हुए जीवन को पटरी पर लेने के लिए जूझते रहे। आज ये अपने परिवार, अपने देश के हित में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और साथियों, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अब इस देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। साथियों, देश का हर बच्चा, बुजुर्ग, सब कोई 15 अगस्त का इंतजार करता है। और हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। मैं देख रहा हूं कि अनेक साथी आजकल सोशल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं। हर घर तिरंगा के उद्घोष के साथ फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों से, विशेष रूप से युवाओं को, हर घर तिरंगे इस आंदोलन से जुड़ने का और इसका प्रचार प्रसार करने का भी आग्रह करता है। साथियों, लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को भ्रष्टाचार में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने इस धारणा को बदल दिया। आज लोगों को महसूस होता है कि उनके पैसे का पाई का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। जो मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी वो आपके बच्चों को झेलनी न पड़े, उसके लिए दिन रात काम हो रहा है। इसका परिणाम ये है कि टैक्स भरने वाले लोगों के विकास के प्रति एक विश्वास बढ़ा है और उसके कारण टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। एक समय था जब देश में
2 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स लग जाता था। आज ये मोदी की गारंटी देखिए, आज 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बावजूद देश में जमा होने वाली इनकम टैक्स की राशि भी लगातार बढ़ रही है, जो विकास के काम आ रही है। इसका स्पष्ट संदेश है कि देश में मध्यम वर्ग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अभी 5 दिन पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख गुजरी है। इस साल हमने देखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 16% बढ़ी है। ये दिखाता है कि लोगों का देश की सरकार पर, देश में हो रहे नवनिर्माण पर और विकास की कितनी जरूरत है, इस बात पर भरोसा कितना बढ़ रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। जब लोग इस तरह का बदलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का निर्माण हो रहा है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी इन सब कामों में गारंटी है। हमें इस विश्वास को दिनों दिन और मजबूत करना है। और भाई बहनों, ये जो 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है ना, ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अमृत भारत स्टेशन भारतीय रेल के इस कायाकल्प को एक नई ऊंचाई देंगे। आओ इस क्रांति के महीने में हम सभी हिंदुस्तानी नए संकल्पों के साथ 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत को विकसित बनाने के लिए एक नागरिक के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी है उसको अवश्य पूर्ण करूंगा। इस संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में जुड़े महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, माननीय सांसद, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधिगण, पद्म पुरस्कार विजेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ट्रेन परिवार के सभी अधिकारी, कर्मचारी, लाखों की संख्या में विभिन्न स्कूलों से शामिल विद्यार्थीगण, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण और आप सभी देशवासियों को भारतीय रेल की ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना। अब मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि हमारे दिनहाटा स्टेशन के जो फाउंडेशन ब्लॉक है उसको ओपन करने के लिए
माननीय मंत्री महोदय और उनके साथ एमएलए महोदया और महोदय को अनुरोध करते हैं, एडीआरएम साहब को रिक्वेस्ट करते हैं ये अनावरण करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। धन्यवाद। भाई भाई এদিকটা আসো, এদিকটা আসো। जोरदार हाथ ताली। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। अभी हम लोग माननीय अतिथियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जाएगा। अभी सब अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ कृपया कंपनी करने के लिए धन्यवाद। भाई ढुकी जाए। হ্যাঁ তুমি আসো এদিকে। আজকের এই শুভ সূচনা নিয়ে কি বলবেন? দিনহাটা রেল স্টেশন নতুনভাবে ছাড়তে চলেছে। দিনহাটার আপামর জনসাধারণ বহুদিনের দাবি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জানেন যে অমৃত স্টেশন যোজনা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে 508টি একেবারে প্রান্তিক স্টেশন আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হবে। তার মধ্যে আমাদের এই কুচবিহার জেলার দিনহাটা যে স্টেশন, সেই স্টেশনের আধুনিকীকরণ, ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্যাফেটেরিয়া থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক লাউঞ্জ থেকে শুরু করে যাত্রী পরিষেবার জন্য ফুল টিউব একটি স্টেশন হিসেবে আমরা আগামী দিনে দিনহাটা স্টেশনকে পেতে চলেছি। আজকে আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং আমরা আজকে ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে, যিনি কুচবিহার জেলার এই প্রান্তিক স্টেশন দিনহাটাকে আরও উন্নত করবার জন্য, ডেভেলপ করবার জন্য এবং বিশ্বমানের করে তুলবার জন্য স্যাংশন করেছে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দিনহাটার আপামর জনসাধারণ প্রত্যেককে আহ্বান জানাবো যে আসুন এই উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ, এই কর্মযজ্ঞে আপনারা প্রস্তুত ছিলেন। কতদিন সময় লাগবে তৈরি করতে? দেখুন, এটা খুব কম সময়ের মধ্যেই আমরা করবার কথা ভাবছি। তবে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক এবং যেহেতু আপনারা জানেন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক রয়েছে, সেক্ষেত্রে একটুখানি সময় লাগবেই। কিন্তু সময় লাগলেও আমরা এই স্টেশনকে আগামী দিনে একেবারে অত্যাধুনিক স্টেশন হিসেবে পেতে চলেছি। আজকে আপনারা জানতেন যে বিভিন্ন সময় যারা বড় বড় শহরের যে সমস্ত স্টেশনগুলো আমরা দেখি, দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা, হাওড়া, শিয়ালদা, যেগুলো ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং সেখানে বহু যাত্রী পরিষেবা সেখানে কিন্তু পাওয়া যায়। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে এই ছোট ছোট একেবারে ক্ষুদ্র স্টেশনগুলোর কথা ভেবেছেন এবং উনি মনে করেছেন শুধুমাত্র শহরের বিকাশই পাশাপাশি ছোট ছোট যে শহরগুলো আছে, প্রান্তিক যে শহরগুলো আছে, সেই শহরগুলো থেকে কানেক্টিভিটি ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনফ্রাস্ট্রাকচারেরও দরকার রয়েছে ভেবেছেন। এবং যে কারণেই আজকে কিন্তু দিনহাটাবাসী আমরা এই দিনহাটা স্টেশনকে নতুন রূপে দেখতে চলেছি। নতুন কোনো রেল পেতে চলেছে দিনহাটাবাসী? দেখুন, ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার আগে আমরা করব এবং পরবর্তী সময় যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে আমরা এখান থেকে আরও দ্রুতগামী ট্রেনগুলোকে চালাবার পরিকল্পনা রাখছি। আরেকটা বিষয়, এই যে দিনহাটা সাহেবগঞ্জের যে রেল লাইনটা আছে, সেখানে কিন্তু যানজটের একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে যদি একটা উড়াল পুল বা এই ধরনের কিছু একটা করার কথা। দেখুন, আমরা পার্শ্ববর্তী জনবহুল এলাকার কথা ভেবে
আমরা একটা ফ্লাইওভারের ফুট ফ্লাইওভারের কথা ভাবছি, নিশ্চিতভাবে সাধারণ মানুষের সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান করা এটা আমাদের প্রায়োরিটি বেস ওয়ার্ক এবং আমরা আগামীতে ধন্যবাদ।